اور پہلی خبر میں خبروں کی شروعات کریں گے اس وقت کی اہم خبر کے ساتھ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے راحت ملنے کے بعد عمران خان نے بین الاقوامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے پاکستان کی فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ عمران خان نے کہا فوج میں کوئی جمہوریت نہیں ہے، صرف ایک شخص آرمی چیف کی ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ Not the security agency, it's one man, the army chief. There's no democracy in the army. The army is getting maligned by what is happening right now. And sadly, the events that happened, when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man. میں سوال ہی پوچھتا ہوں کہ میں اتنی دیر سے لگا وہ کہنے کہ ہم پرامن احتجاج کرتے رہے ہیں 27 سال سے، سارے ہمارے بڑے تاریخی جلسے ہوئے، لوگ آتے تھے چپ کر میں ان کو وارن کرتا رہا کہ اس کو ملک کو نہ باندھے جاؤ، جب یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے۔ میری تقریریں ہیں کہ ہم یہ سری لنکا جب لیڈر پلس موب نکلاتا ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، میرے کنٹرول میں جلسے ہوتے تھے، دھرنے ہوتے تھے، سب پرامن رہتے تھے۔ تو یہ جو انہوں نے کیا اس دن پکڑ کے ساری دنیا کے سامنے مجھے ایک دہشت گرد دکھا کے فوج پکڑ کے مجھے لے کے جا رہی ہے، تو اس کا رد عمل کیا میں ذمہ دار ہوں؟ اور پاکستان کے موجودہ حالات پر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایک بار پھر بیان دیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ پاکستان ایک علیحدہ ملک ہے، وہ جو کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں امن قائم ہو۔ ہم تو صرف یہ چاہیں گے کہ پاکستان مضبوط رہے، وہاں پہ امن آئے، وہاں پہ عمران خان زندہ رہیں، کیونکہ یہ ہسٹری بہت خراب ہے۔ لیاقت علی خان صاحب کو قتل کیا گیا، بھٹو صاحب کو قتل کیا گیا، اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا، بلکہ نواز شریف بھی اگر سعودی عرب بچاتا نہیں وہ بھی جیل میں مارے گئے۔ اس طرح کرے کہ وہاں ملک ٹھیک رہے، جتنا مضبوط رہے گا اتنا ہمارے لیے بھی، ہندوستان کے لیے بھی اچھا رہے گا۔ جموں کشمیر کے بانہال میں SIU نے چھاپے مارے ہیں۔ رامبن پولیس کے ساتھ مل کر بانہال اور رامسو کے علاقوں میں متعدد مقامات پر چھاپے ماری کی گئی ہے۔ اوور گراؤنڈ ورکرز کی مختلف جگہوں پر 7 مکانات پر یہ چھاپے ماری کی گئی ہے۔ ملیٹنٹوں کے رشتہ داروں اور ہمدردوں کے گھروں پر بھی چھاپے ماری کی گئی ہے۔ SIU نے بڑی مقدار میں قابل اعتراض ڈیجیٹل مواد برآمد ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک اور بہت اہم خبر، وزارت داخلہ نے 130 سال پرانے جیل قوانین کو تبدیل کر کے ایک نئے ماڈل جیل ایکٹ 2023 کو حتمی شکل دے دی ہے۔ اس ماڈل ایکٹ کو ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو بھیج دیا گیا ہے اور اس کا مقصد جیلوں کے انتظامات میں شفافیت لانا ہے۔ اس کے علاوہ قیدیوں کی اصلاح کرنا اور انہیں ہنرمند بنانا بھی ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ PM مودی کی دور اندیش قیادت میں یہ اہم قدم اٹھایا گیا۔ جل جیون مشن پروگرام اب ہر گاؤں تک پہنچ رہا ہے۔ مرکزی وزیر گری راج سنگھ سرحدی گاؤں ہیمیا پہنچ کر اس کا انہوں نے آغاز کیا۔ گاؤں والوں نے نل میں پانی آتا دیکھ کر بے حد خوشی کا اظہار کیا اور PM نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا۔ PM مودی کا ویژن ہر گھر نل ہر گھر جل ہے۔ PM مودی نے ٹویٹ کے ذریعے اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس سے ہر ہندوستانی کو فخر ہوگا۔ سرحدی علاقوں کی ترقی کے لیے ہماری کوششوں کو کامیابی ملتے دیکھ کر خوشی ہوئی۔ کئی دہائیوں تک ہمارے سرحدی علاقوں کو نظر انداز کیا گیا تھا۔ کالج آف نرسنگ گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا میں نرسوں کا عالمی دن منایا گیا۔ جدید نرسنگ کی علمبردار فلورنس نائٹنگل کی یوم پیدائش کی یاد میں اس کا خاص انتظام کیا گیا۔ اس سال کی تھیم ہماری نرسیں ہمارے مستقبل پروگرام پر مرکوز رہا۔ پرنسپل GMC ڈوڈا پروفیسر ڈاکٹر پوجا ومیش نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے GMC ڈوڈا میں نرسنگ ورک فورس اور ان کی لگن کی بہت تعریف کی اور کہا کہ وبائی امراض کورونا کے دوران ان نرسز کی نمایاں شراکت داری رہی ہے جو کہ پوری دنیا میں اپنی مثال آپ رہی۔ انہوں نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال کے ڈھانچے میں نرسز کا سب سے اہم رول ہوتا ہے۔
मरीज के आराम का पूरा ख्याल रखा जाता है, उसकी ठीक तरह से देखभाल करने में इन नर्सेस का सबसे अहम किरदार होता है। Future depends on every nurse. Nursing and midwifery, the sustained nursing service as a part of nursing care. जब भी हॉस्पिटल में अगर पेशेंट आता है तो वो एक होप लेके आता है, एक उम्मीद लेके आता है हमारे पास कि वो जल्दी ठीक होकर घर जा पाए, और हम एक्ट करते हैं मीडिएटर बिटवीन द डॉक्टर एंड अ पेशेंट। तो हमारा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन जो होता है पेशेंट के साथ रहता है, तो इसलिए हमारा जो भी हमारा एनवायरनमेंट है वो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि पेशेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आए तो उसे अच्छे केयर प्रोवाइड हो सके। जब हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो उस टाइम जो हमारे कोई रिलेशन होता है उस टाइम वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम प्रोफेशनल लेवल पे हम केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट्स को, देन पेशेंट भी बड़ा खुश हो जाते हैं। दे आर गिविंग अस अ ब्लेसिंग, जब वो हमें ब्लेसिंग देते हैं, बिकॉज नर्सिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। तो बहुत अच्छा रिलेशन है, नर्स और पेशेंट का रिलेशन बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है, क्योंकि नर्सेज जो होती है दैट इज 24/7 पेशेंट के साथ डील होता है। तो नर्सिंग स्टाफ जो है, मैंने पहले बोला, ये हमारा बैकबोन है, ठीक है। जो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे आप नर्सिंग स्टाफ को इनके काम के लिए, इनके जो वर्क एंड कंडक्ट जो ये करते हैं वहाँ पे, उसके मतलब उसके बारे में इनको अगर हम थोड़ा सा एक बूस्टिंग इफेक्ट देते हैं, उसको एक सेलिब्रेशन देते हैं, एक उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये एक मोरल होता है जो इनका थोड़ा सा बूस्टअप होता है, और इनको भी अच्छा लगता है कि किसी दिन कि हमारी भी हम जो इतना डेडिकेशन दिखा रहे हैं, डेडिकेटेड काम कर रहे हैं, तो हमारे काम को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट किया जा रहा है। और नर्सेज डे के मौके पर अनंतनाग में भी खास तकरीब का एहतमाम किया गया। सब जिला अस्पताल सीर हमदान में भी इस हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के अलावा नर्सेज ने हिस्सा लिया। इस मौके पर नर्सों के रोल की अहमियत पर खासी रोशनी डाली गई और माजी से लेकर अब तक तिब्बी शोबे में नर्सों की सर्विसेज को याद किया गया। इस मौके पर नर्सों को दरपेश मुश्किलात का भी यहाँ पर तस्करा किया गया। नर्सेज डे इसलिए मनाते हैं, नाइट एंगल फ्लोरेंस थी एक नर्स, एक लेडी, उसने बहुत ये किया डेवलप कि नर्सिंग केयर कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, पेशेंटों के लिए केयर करते हैं। हम जब डॉक्टर एडवाइज करते हैं, ऑल एडवाइज डॉक्टर्स फॉर नर्स हो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेशेंट्स, केयर करने के लिए वो ऑल केयर करते हैं, इंजर्ड पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट्स, लेबर पेशेंट्स, वार्ड हैंडल करती हैं नर्स इज बैकबोन फॉर हॉस्पिटल। खासकर HDHC, स्पेशली HDHC इज वेरी नर्सिंग केयर स्पेशल देते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर में इलाके के आज़मीन हज के लिए खुसूसी वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द और ख़वातीन आज़मीन हज को टीकाकारी की गई ताकि हज के दौरान आज़मीन को किसी तरह की परेशानी न पेश आए। हाजी साहिबान के लिए वैक्सीनेशन डे मुकर्रर किया गया है, जिसमें हमारा टारगेट तकरीबन 350 के आसपास रखा गया है। शुक्र अल्लाह का कि अभी तो चल रहा है, तकरीबन अभी तक हमने 110-115 के आसपास तकरीबन हमने वैक्सीनेशन की है। हाजी साहिबान को तकलीफ ना हो इसके लिए हमने अलग अलग काउंटर रखे हैं। जैसे हमारे हाजी साहब आते हैं पहले उनको रजिस्ट्रेशन की जाती है, उसके बाद उनका हेल्थ चेकअप किया जाता है और उसके बाद वैक्सीनेशन का डोज दिया जाता है। GDC सुंबुल की स्कूल गोद लेने वाली कमेटी ने बैन स्कूली नातिया मुकाबले का इनेकाद किया। GMC सुंबुल के ताउन से इसका एहतमाम किया गया। इस मुकाबले में एजुकेशन जोन सुंबुल के मुख्तलिफ स्कूलों के 13 तलबा ने हिस्सा लिया। कॉलेज प्रिंसिपल शबीना इकबाल शाल ने मुकाबले के शुरका से खिताब में कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुस्तकिल बुनियादों पर मुनक्किद करने की ज़रूरत है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो वक्त की पाबंदी करें और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें। प्रिंसिपल ने तलबा की हौसला अफजाई की और कहा कि वो तालीमी और गैर निसाबी सरगर्मियों में बुलंदियों को हासिल करें। उन्होंने स्कूल गोद लेने की कमेटी की काविशों की भी सराहना की। हायर एजुकेशन की डिपार्टमेंट के हवाले से हमें ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि हम अडॉप्ट करें किसी स्कूल को फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन।
क्योंकि कॉलेजेस में फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, हम इसमें कर सकते हैं कि जो हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं, उन बच्चों को अडॉप्ट करके उनको हर कोई फैसिलिटी जो हम दे सकते हैं विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, हम इनको दस्तयाब कर सकते हैं, वो हम इनको कर रहे हैं। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नमस्कार, धारवीर रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। जम्मू कश्मीर गृह विभाग का निर्देश, 607 नए पोस्ट क्रिएट करने का आदेश। पाकिस्तान से लगी सीमाओं के चलते फैसला, एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को किया जाएगा मजबूत। डोडा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास हादसा, 1000 फीट गहरी खाई में जा गिरी कार, 2 लोगों की मौके पर मौत। श्रीनगर के छताबल के वीर इलाके में भीषण आग, 3 रिहायशी घर जलकर खाकस्तर। घटना के तुरंत बाद आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए अभियान चलाया गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। और पहली खबर में एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर के डोडा में मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने मेगा मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप और आम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। महकमा सेहत और महकमा आयुष के ताउन से कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए कैंप मुनक्किद किया गया। डोडा के ARTO राजेश गुप्ता ने कहा कि ड्राइवर्स को सेहत से मुतालिक जानकारी दी गई, उन्हें रोड सेफ्टी टिप्स के अलावा कवानीन के बारे में भी आगाही फराहम की गई। ये बहुत फायदा है ड्राइवरों के लिए, खास करके ड्राइवरों के लिए, हर किसी के लिए अगर ये लगा रहे कैंप तो अच्छी बात है। हर कोई यहाँ पर आकर चेक करा सकता है, जिसके पास हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई टाइम नहीं है। ड्राइवर की जिम्मेदारी, बहुत सी जिम्मेदारी है, 50 सवारियों की जिम्मेदारी उसके सर पे होती है, उसने चलना चाहिए ठीक से। हम ड्राइवर्स का इसमें मेडिकल चेकअप भी करेंगे, प्लस ये अवेयरनेस कैंप भी है। वही हमने ड्राइवर्स को रिक्वेस्ट किया है, अपील किया है कि वो अपना मेडिकल चेकअप करवाएं, स्पेशली आइस का। आए दिन जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, ताकि इन लोगों को अवेयरनेस दे, कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स क्या है, क्या रीजंस हैं। अगर आपने गाड़ी चलानी है तो प्रॉपरली जो स्पीड प्रिस्क्राइब है उसके हिसाब से चलाएं, ओवर लोडिंग ना करें गाड़ियों में, ताकि जो एक्सीडेंट्स हैं वो मिनिमाइज कर। SKV ने एक एग्जीबिशन का एहतमाम किया। इसमें दस्तकारी से जुड़ी अशिया को खूबसूरती के साथ पेश किया गया। हेमिया गांव की दो खवातीन ग्रुप्स ने अपनी कालीनों को यहां नुमाइश के लिए रखा है। न्यूज़ 18 लद्दाख के साथ बातचीत करते हुए ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर में हमने यहाँ के ताउन से 21 रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें 26 खवातीन कारीगरों ने हिस्सा लिया। यहाँ मौजूद तमाम अशिया हाथ से बनी हैं। ये नुमाइश 3 दिनों तक जारी रहेगी। यहाँ ये एग्जीबिशन हो रहा है कि लास्ट ईयर हमने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था हेमिया गांव में। 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेंस की सेल्फ हेल्प ग्रुप थी। तो बेसिकली ये कोलैबोरेशन किया था सोमया कला विद्या,
गुजरात बेस्ड एक NGO है, तो उन्होंने ये ट्रेनर्स वगैरह वहाँ गुजरात से आया था। तो ये 21 दिन का 3 हफ्ते का ट्रेनिंग था। LNP इस ट्रेनिंग का एक ग्राउंड पार्टनर था, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी था। ये ट्रेनिंग बहुत ही एक हमें लगा बहुत सी यूनिक सा एक ट्रेनिंग था। इसलिए यूनिक सा था क्योंकि अभी तक जितना भी हमने ट्रेनिंग दिया था या जो भी लेह में जो विलेज लेवल पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, वो खासकर स्किल बेसिकली ये वीविंग पे, नीटिंग पे स्किल इम्पार्ट करते थे। तेने का कितना ngaji का कॉपी का डिजाइन जोस तेन इसमा इजो राना लाखवा ने तस्त नयाले तियो कितना ngaji केतक इजो केतपा का खुरते तस्त नयाले समा तेन का चंग इजो मिशी मकालते में कपाल समा लाखवा निकालते नयाले तेन का इजो सुकदान यो दियाले सुकतुल यो तेने का कालीन सेंटर कालीन दुयाले तेने सुकतुल दुले केरा दुक टीवी आयोले तेने डोरमेट चौक तेने yang गाड़ी सीट का तीन चेतन चुन यो दियाले तेने yang तुलो ज़ुक्तोस yang खची दुयाले ना का खची दुले। जिला शोपियां के देही इलाकों में नाक़िस बिजली सप्लाई निज़ाम से लोग परेशान हैं। इमाम साहब वजीर चगांव पिछले 21 दिनों से मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक PDD ने गुज़िश्ता 21 दिनों में उनके बिजली ट्रांसफार्मर्स को 3 बार ठीक तो किया, लेकिन गांव में उनको फिक्स करते ही फिर से वो ट्रांसफार्मर्स ख़राब हो जाते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में बिजली का हाल नाक़िस है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो PDD को माहाना 945 रुपये फीस अदा कर रहे हैं, लेकिन बिजली का एक खंबा तक यहाँ मौजूद नहीं है। मतलब इमाम साहब जो तहसील है, इनके फैसले पे सिर्फ 1.5 किलोमीटर पिछले 21 दिन से हमें पावर देखा ही नहीं है, जबकि उन्होंने 3 बार इस ट्रांसफार्मर को लाया है तो किराया हमने अपने जेब से दिया। तो महज ये 10 मिनट या 15 मिनट तक रहता है, 15 मिनट के बाद बोलते हैं ये आपको ओवरलोड हो गया। हमें ये समझ नहीं आया था 15 मिनट में कौन सा ओवरलोड होता है, जबकि इनके मिस्त्री भी नाबकार है और नालायक है। ये हमें दूसरे गाँव पे उठा के देते हैं और बोलते हैं ये नया, हमने अंदर से उसको नया बना दिया और ऊपर से उसको ये बाड़ी डेड है। वजीर चक इमाम साहब रोजान अस वो लगभग 21 दह पावर वुचनस ट्रांसफार्मर वो 4 लट अक दिन तौर शुपियन ना पावर वुचन 21 दह पे वो पावर आसान 4 बाद ट्रांसफार्मर शुपियन यह काल ग खराब सुबह काल गल ब्लास्ट सुबह गल ब्लास्ट यह वुचन यह लानत टुरन पे वुचन पोल। LG मनोज सिन्हा ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के इफ्तिताह के सिलसिले में पोलो व्यू मार्केट श्रीनगर का दौरा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहर के पोलो व्यू मार्केट का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया नुमाइंदों को बताया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को दिलकश बनाने का अमल जारी है। मनोज सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर का लाल चौक और ओल्ड श्रीनगर के बाजार दिल्ली और दूसरे शहरों की तरह जदीद नजर आ रहे हैं और श्रीनगर में रहते हुए लोग महसूस करेंगे कि वो मुंबई या दिल्ली में हैं। लाल चौक और पुराने शहर में जल्द ही नई मार्केटें खुल जाएंगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर की तरक्की के मजीद काम भी अंजाम दिए जाएंगे। बैठो नीचे, सिक्योरिटी नीचे बैठो, नीचे। एक बेहतरीन मार्केट जो दिन रात चल सकती है, शुरुआत है। आने वाले दिनों में रेजिडेंसी रोड, लाल चौक और पुराने शहर में भी कई ऐसे मार्केट स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली और चंडीगढ़ या बाकी बड़े शहरों की तरह श्रीनगर शहर भी दिखाई पड़े, ये लगातार कोशिश हो रही है। और आज जो लोग इसको देख रहे होंगे, अनेक लोग ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि नहीं वो श्रीनगर में नहीं दिल्ली या मुंबई में खड़े हैं। ऐसे और भी मार्केट आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आबी गुजरगाह मंदिर का दौरा किया। SMC मेयर जुनेद अजीम मत्तू, SMC कमिश्नर अथर
आमिर खान और इंतजामिया के दीगर अफसरान भी इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा मौजूद रहे। दरअसल 3000 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर श्रीनगर की बड़े पैमाने पर तज़ीन नौ की जा रही है, इसीलिए एलजी इंतजामिया तमाम उमूर की निगरानी में सरगर्मी दिखा रहा है। हाल ही में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने कहा था कि श्रीनगर शहर को बेहतर से बेहतरीन बना देने की तैयारी चल रही है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने साइकिल ट्रैक बनाए हैं। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर फी घंटे के हिसाब से साइकिलें दस्तयाब रखी जाएंगी। श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क के किनारे कार पार्किंग भी दस्तयाब कराई गई है। घंटाघर के नाम से मशहूर क्लॉक टावर की तज़ीन को भी यहां पर तवज्जो दी गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने स्कॉसिस श्रीनगर में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस पर एक रोड शो का इनेकाद किया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत की जानिब से मिटवाई स्टार्टअप हब के तहत G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस की पहल शुरू की गई। G20 के तमाम ममालिक और 9 मेहमान ममालिक के 6 शोबों में स्टार्टअप्स की तरक्की पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एडटेक, हेल्थ टेक, एग्रीटेक, फनटेक, महफूज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्कुलर इकोनॉमी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी पर गौर फिक्र की जाएगी। इस तकरीब का मकसद इख्तराई हल की नुमाइश और इख्तराई माहौलियाती निज़ाम के प्लेयर्स का इत्तेहाद बनाना है। इसमें स्टार्टअप, सरमायाकार, सरपरस्त और इदारे शामिल हैं। रोड शो के दौरान श्री राजेश शर्मा, चेयरमैन जम्मू कश्मीर FICCI स्टेट काउंसिल ने खिताब किया। उन्होंने नौजवानों को आज की तेज रफ्तार दुनिया में इख्तिरा की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस तरह के प्रोग्राम में FICCI की काविशों को सराहा और माशरे की बेहतरी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाने की तरगीब दी। कि G20 की प्रेसिडेंसी में ऑल इंडियंस आर फीलिंग a sense of pride and motivation. And also the G20 has become a people's movement with a people's involvement and a lot of initiative. So to address the complex problems that are facing the world today, the involvement of all sections of society and most so the youth is being done so that they can come up, and this is an initiative where there is a program where you could innovate, you could have your startups, you could give ideas, and there is also a portal which has been opened by MeetY for everybody who wants to have their product or their innovation or their startup showcased. They can apply, and then in the final meet which is going to take place in August in Bangalore, they would be there, and there would be a lot of international showcasing also of startups, innovations. So it will be a great source of motivation for our youth, our students. इसलिए हम लोग बहुत उत्सुकता के साथ जो आने वाला इवेंट यहाँ हो रहा है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। 100 मुल्कों के अलग अलग वाइस चांसलर आए हैं 100 इंस्टीट्यूशन से, और जिनमें कम से कम वाइस चांसलर 25 हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की। उसके अलावा जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है वहाँ के काफ़ी सारे बड़े बड़े आला अहदेदारान आए हैं। तक हमारे कई सैकड़ों बच्चे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका और मुल्क के दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ में कैंसस यूनिवर्सिटी है, टेक्सास यूनिवर्सिटी है, या थाईलैंड की कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, या उसके अलावा जो हमारी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, उनमें जाकर के बच्चों ने इंटर्नशिप किया, या हमारी बायलैटरल डिग्री प्रोग्राम उनके साथ हो रहा है। ये इसी हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट का एक ज़रिया था, वसीला था कि हमारे इतने सारे अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंटों को ये एक्सपोजर मिला। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक